Hello everyone, welcome to my channel. Myself Supriya Rai. Today in this video we will see the numerical based on the temperature. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंसिडर करूंगी कि आप एक बार मेरे चैनल पे जाकर हीट एंड इट्स इफेक्ट का वीडियो एक बार देखें. वो आपकी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड देन यू विल गो फॉरवर्ड फॉर द न्यूमेरिकल्स. फर्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड. इस चैप्टर में हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं. Here we are going to study about the two different conversion. First one is Celsius to Fahrenheit and second one is Fahrenheit to Celsius. So let's move toward the first case. Convert Celsius into Fahrenheit. पहली चीज तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको जाननी होंगी कि सेल्सियस को हम डिनोट करते हैं डिग्री C से और फ़ारेनहाइट को हम डिनोट करते हैं डिग्री F से. These are the symbolic representation. Now let's see the formula to convert Celsius into Fahrenheit. इस फॉर्मूले को सबसे पहले आपको याद करना होगा टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल वॉट एवर द न्यूमेरिकल्स वर बेस्ड ऑन दिस. तो सबसे पहले आपको सेल्सियस कैलकुलेट करना है. तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि सेल्सियस में अगर वैल्यूज गिवन है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हम चाह रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूले में जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ हमेशा फ़ारेनहाइट लिखा होगा. सो F इज फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड C इज फॉर डिग्री सेल्सियस. n upon 5 and degree Celsius plus 32. Okay? Now, here one example to show you how actually we are going to do the numerical. Let's see the first example. Here question is convert 25 degree Celsius into Fahrenheit. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे. आप सब ये काम हमारे साथ बैठकर कॉपी पेन लेकर स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर्मूला था F is equals to 5 upon 9 or 9 upon 5. You just tell me. Let's quickly just check it out the formula once again. It's 9 upon 5. Okay, so don't be confused. Here we have to write 9 upon 5. Now formula is to write here C and then this is our bracket plus 32. Now what we are going to do, we have to put the values. Okay, so now when we put the values 9 upon 5 into, instead of C, अभी C की जगह हम क्या लिखेंगे, we are going to write here 25. Now plus 32 will be the same. Now what is going to be happen, we have to calculate it by solving. अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आप नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे. 5 1 5, 5 5 25. Okay, now after that you will have to just do it calculation. And अब 9 5 जब क्या होगा बेटा, 9 5 जब 45 और अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है 32. So now what will happen here, अब क्या होगा, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे so you will get your value. 5 plus 2 7 and 4 plus 3 also 7. So 77 degree Fahrenheit. This is your answer. I hope you all have calculated the correct one. But let's see another example. Here now we are having the value 75 degree Celsius. Now you all just first write the formula. F is equals to 9 upon 5 into C plus 32. Now put the value. Be a little quicker. These all are the small and easy numericals. Okay. So here now 5 1 5, 5 1 5, 6 7. It will be 2 carry along with here. So 5 5 25. Now what will happen? अब आप देखेंगे क्या हुआ, यहाँ 9 है और 15. 9 into 15 plus 32. Okay. So क्या होगा अब यहाँ पे, 9 और 15 को अब आप मल्टीप्लाई करेंगे. So you will have to write 9 5 45. 4 9 1 9, 10 11 12 13. It will be 135 plus 32. Now what will be the answer, 5 plus 2 7, 3 plus 3 6 and 1 will be, so 167 degree Fahrenheit. So I hope you all have done this question more quicker than me. Now let's move toward the next part. Convert Fahrenheit into Celsius scale. First we see the formula here once again. Here a little bit change in the formula, you can see. Here the numbers are being just opposite to the Fahrenheit case. Okay, वहाँ के केस से और यहाँ के केस में आप देखेंगे तो वहाँ पे हमारा था 9 upon 5, यहाँ पे हमारा 5 upon 9. And this was, वहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था, बट यहाँ हम फ़ारेनहाइट से पहले हम क्या करेंगे, 32 को माइनस करेंगे और उसके बाद हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे. सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल. फर्स्ट क्वेश्चन. अब हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5 upon 9. ब्रैकेट में हमें लिखना है 86 minus 32. Okay, 5 upon 9. Always you have to write the formula first. Okay, I haven't written, but you all have to must write it. 6 minus 2, it will be 4. 8 minus 3, it will be
5. So now here we know this, what will be the symbol here? Multiplication. So 9 1 ja 9, 9 6 ja 54, and 5 6 ja, you all are aware with it, 30. So it will be 30 degree Celsius. Okay, is there any confusion? If yes, you can drop a comment in the comment section. Now the next question what we have here, 104 degree Fahrenheit. So again we will write the first formula. Now I am writing it for you. F upon 9, 5 upon 9, here we are having minus F minus 32. So now we will write the value 5 upon 9. In a bracket we write 104 minus 32. So now what we are going to get here, अब हमें मिलेगा क्या वैल्यू? आप देखेंगे 5 upon 9 हमने लिखा और मल्टीप्लीकेशन के बाद 4 minus 2 it will be 2 and 10 minus 3 what we are having 7. And when you calculate 9 1 ja 9 and 9 8 ja 72 and 5 8 ja it will be 40 degree Celsius. Okay, so these all are the ways through which you can find out the numerical based on Fahrenheit and Celsius. Now here I have a one question which is very important and must going to ask in your exam. What is that? कि how you are going to change the human body temperature. पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर बॉडी का कितना होता है. तो अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. अगर बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा तो उसे हम कंसिडर करते हैं हाई टेम्परेचर राइज, वो उसे हम फीवर भी कहते हैं, और कम है तो भी वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. अब ये 37 डिग्री सेल्सियस है तो लेट्स चेंज इट इनटू फ़ारेनहाइट एंड चेक कि एक्चुअली फ़ारेनहाइट में कितना होगा. ये अगर हमें नहीं पता है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. So now here we know which formula is going to be applied here. Now here we have to calculate in Fahrenheit. So it will be 9 upon 5 into C plus 32. Okay. Now the second thing what we are going to do, now we have to put the values. 9 upon 5. In the place of C we are going to write 37 plus 32. Now here one thing you have to see कि अब हम करेंगे क्या इसको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज 37 जो है एक आपका नंबर जो ऐसा है जो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे हमें कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो उससे आपका रिजल्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो व्हाट वी डू, वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिवाइड द 9 and 37, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी डिवाइडेड विद द 5. ओके, सो लेट्स सी. सो 37 and 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो व्हाट विल बी द रिजल्ट. Here the result will be 333. Okay, so you all can also calculate, आप भी कर सकते हैं. और यहाँ हमने 5 लिखा प्लस 32. So now अब आपको इसे क्या करना है, आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे. So you can see here what we can do. 5 है आपका तो 5 6 जा 30. Then you have a 3. So what you will do, again you will do 5 6 जा and then again you are having a value which is the 3 and 6. So total हमारे पास वैल्यू क्या बची, हमारे पास वैल्यू बची 66.6 plus 32. Now when you add these numbers, what you will get? When you add these numbers, you will receive a number which is 689. So the normal body temperature on a Fahrenheit scale is 98.6 degree Fahrenheit. I hope this is helpful for you. Now let's see, there is a complicated question. This question is a part of a living science class 7. Okay, so इस question को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा. क्या है इस क्वेश्चन में, यू हैव टू कैलकुलेट अ टेम्परेचर एट विच द रीडिंग ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इज डबल. जो रीडिंग होगी आपकी फ़ारेनहाइट स्केल पे वो डबल है किसके, सेल्सियस स्केल पे. तो यहाँ पे हर एक वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, एज्यूम करनी पड़ेगी. तो एज्यूम करने के लिए हमें हर चीज़ पहले आप सेल्सियस के लिए एक वैल्यू सेलेक्ट करिए और फिर एक फ़ारेनहाइट के लिए. तो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि हमें जो वैल्यू सपोज करनी होती है तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज चूज विथ एक्स. ओके, तो हम यहाँ पर क्या स्केल पे वैल्यू चूज करेंगे, हम सेल्सियस के लिए x मान लेते हैं. तो हमारा ऑटोमेटिकली, क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या बोल रहा है कि जो भी वैल्यू सेल्सियस पे है उसका डबल होगी, तो आपकी फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी 2x. ये हो गया सबको क्लियर कि हमें यहाँ पे वैल्यूज माननी है, तो हमने इसको x मान लिया, तो फ़ारेनहाइट पे क्या हो गया हमारी वैल्यू, इट विल बी 2x. ओके, नाउ लेट्स यूज दीज वैल्यूज. अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यूज करके फॉर्मूले में हमें ऐड करना है. नाउ हियर व्हाट विल बी द फॉर्मूला, हम इसमें सबसे पहले हम फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लिखेंगे. कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट इट. हियर वी आर हैविंग C plus 32.
नाउ हेयर वी नो कि हमने c की वैल्यू क्या ली है और f के लिए हमने 2x लिया था, और यहाँ पर 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। फिर क्या हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे बेटा, यहाँ पर अब वैल्यूज आप देखेंगे तो 9/5 जो है से x के साथ मल्टीप्लाई, इट विल बी 2x, और ये हमारा 32 एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब आपको पता है कि जब हमारा LHS और RHS है और हमें एक जैसी वैल्यूज को एक तरफ लेना होता है, सेम टाइप की जो यूनिट्स होती हैं, तो यहाँ x और x आप देख रहे हैं कि दो तरफ है, तो अब हम क्या करेंगे, उन्हें एक साइड लेकर जाएंगे। ओके, सो हियर वी विल टेक दिस नंबर ऑन द दिस साइड। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, 2x minus, because on the other side it is in plus, so when it moves to the other side, RHS और LHS जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उनके साइंस भी चेंज होते हैं। So here we are going to write like this. अब आप इसे सॉल्व करेंगे, so when we solve it what will happen, अब हम इसकी वैल्यूज को LCM लेंगे, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो it will be 10x minus 9x upon 1 upon 5. Okay, now and this side we have always the 32, क्योंकि उसे हमने कोई चेंज ही नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको आप जब सॉल्व करेंगे सो आप देखेंगे कि 10 है, ये हो गया हमारा x अपॉन 5 इंटू 32। सो अब हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, अब हमने देखा कि ये तो हमारा सॉल्व हो गया, बट अब हमें क्या करना है, हमारी वैल्यूज को आंसर हमें लाना है। तो अब हमारे पास x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो नाउ वी विल टेक इट टू द अदर साइड। सो हियर x इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5. So what will be the answer? 5 2 10, 1 5 3 15 and 60. So here we got the value of x. अब हमें x की वैल्यू मिल गई, तो मतलब x क्या था हमारा, you all are aware with it. शुरू में आपने देखा था कि हमने क्या माना था, here you can see what we have supposed कि हमारा जो x होगा वो क्या है, सेल्सियस है, एंड तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा हमारा 2x. So now here we are going to do the same. अब हम वही करेंगे यहाँ पर। तो अब हमें x मिल गया है, तो x हमारा क्या था बेटा, x की वैल्यू हमारी जो थी वो सेल्सियस थी, ये हमारा सेल्सियस हो गया। तो फ़ारेनहाइट के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। हियर आई हैव प्लान फॉर अ वर्कशीट। ओके, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। मैं उम्मीद करूंगी और ये होप करती हूँ दैट एवरी वन ऑफ यू आर गोइंग टू डू these all questions in your fair copy, and after that you will tell me the answers. Okay, you can answer me in the comment section. Hope you all like the video. If you do, please don't forget to like, share and subscribe my channel. We will see you in the next video.